Morning students. In our last class we have talked about the functioning of heart. We have discussed so far, we have discussed digestive system, respiratory system, and now that how these respired elements and these digestive elements are absorbed and transported into the body. So in last class we talked about blood, the components of blood, what are the components. We talked about RBC, WBC, platelets, plasma, okay, and we have started the topic heart, okay. So the diagram is in the book. I'm reading here. It's on page number 106. On the topmost you have a diagram, okay. So it may seem you complicated, but once you will start drawing, it's not that complicated. And for your better understanding, okay, your heart is four chambered. See, you have studied classification in class 9, okay. In class 9 you have studied classification, in which we talked about the classification of animal kingdom, like this Porifera, Platyhelminthes, Coelenterata and mollusca so far. So first and foremost I'll be talking about two types of circulatory system. Two types of circulatory system. If it's visible to you, you can write in your copy, otherwise these will be provided you in my notes, okay. So two types of circulatory system are exhibited by animals. One is open circulatory system, and the another is closed circulatory system. Okay, so what is the difference between open circulatory system and closed circulatory system? So before explaining open, I'll explain you closed. What happens that this heart is pumping blood throughout the body. So this blood is always transferred into the veins or arteries, to which we call BV or blood vessels. Blood vessels, which are broadly speaking of two types. Arteries and veins, okay. Then these arteries, veins, they diverge into capillaries, that I'll explain you later. But broadly speaking, there are two types of blood vessels, that is arteries and veins. Now, arteries are always associated with oxygenated blood, or the blood having oxygen, and veins are always associated with deoxygenated blood, the veins having carbon dioxide, okay. And in your book as well, in the diagram also, the blue part resembles the deoxygenated blood, and the red part represents the oxygenated blood. Now, and the exception is pulmonary arteries and pulmonary veins. I am repeating again. What is closed circulatory system? जहाँ पे ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करता है. आपके पूरे बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं उनको ब्लड सप्लाई होती है, बट दिस ब्लड इज नॉट, इट्स नॉट इन ओपन. दिस ब्लड ऑलवेज फ्लोज इनटू आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज closed circulatory system. And in other organisms, the lower organisms like earthworm, other organisms, what happens, even they have blood, but the organs are directly dipping into the blood. See, suppose this is kidney. अगर हम बात करें, ये mammalian kidney है, okay. So what will happen? This kidney will be supplied by blood, and the blood will always enter into the kidney via blood vessels, okay. So this type of system is known as closed circulatory system, whereas in open circulatory system, the organ is not supplied blood by blood vessels. The organ is directly dipped into the blood. This is known as your open circulatory system. Now talking about blood vessels, they are broadly speaking of two types, arteries and veins, okay. And except pulmonary artery and pulmonary vein, arteries are always associated with oxygenated blood, but the exception is pulmonary artery, which I will discuss you in the later section, and pulmonary vein. मैं वापस बोल रही हूँ बेटा, ब्लड वेसल्स दो तरीके की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स. आर्टरीज हमेशा साफ खून, चाहे मैं साफ खून बोलूँ, चाहे मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलूँ, या मैं बोलूँ ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, ओके. या और जो वेन्स होती है वो हमेशा बॉडी से गंदा खून लेके आती हैं हार्ट की तरफ, और आर्टरीज अच्छा खून लेके जाती हैं
पूरे बॉडी पार्ट्स में। ओके, अब इसमें आपका एक्सेप्शन आ जाता है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी शब्द आप कहीं पे भी सुनेंगे तो पल्मोनरी शब्द इज एसोसिएटेड विद लंग्स। ओके, तो पल्मोनरी आर्टरी रिवर्स काम करती है। देखो आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, बट द एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी। ओके, एक्सक्यूज मी, but the exception is pulmonary artery. It is always associated with deoxygenated blood and pulmonary vein. देखेंगे वेन में हमेशा deoxygenated blood होता है, मगर pulmonary vein जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं। बिल्कुल आपको चीज़ों को मगअप नहीं करना है, समझ के चलेंगे। ये मत सोचिए थोड़ा सा आपको हार्ड कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो आप ऐसे ना सोचिए कि कैसे होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, तो आप वैसे ही उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल आपको लर्न नहीं करना है या फिर मगअप नहीं करना है। तो आर्टरीज वेन्स मैंने आपको बताया। नाउ आई एम अगेन कमिंग बैक टू द प्रीवियस लेक्चर। This is your heart divided into 4 chambers. The upper 2 chambers are known as auricles and the lower 2 chambers are known as ventricles. Now we will give the name left and right. So this I will write right up. Okay, and the reason I have explained you mirror image and all that. So आप हमेशा जब याद रखेंगे, अगर कोई क्वेश्चन भी आता है या जो नीट एस्पायरिंग या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपको बताया था जब ह्यूमन एनाटॉमी को कॉपी में लिखोगे तो वाइस वर्सा लिखोगे, बिकॉज इट्स लाइक दिस। ओके, आई टोल्ड यू। देखो मैंने राइट साइड पे लेफ्ट लिखा है, मगर व्हेन आई विल स्टैंड लाइक दिस, व्हेन आई एम राइटिंग इट्स लेफ्ट एंड राइट लाइक द मिरर इमेजेस वी हैव, बट नाउ व्हेन यू स्टैंड स्ट्रेट इट बिकम्स द ह्यूमन एनाटॉमी में हम रिवर्स लिखते हैं, जब आप आगे भी मेडिकल साइंस पढ़ेंगे। नाउ so these are the 4 chambers in your heart. The upper 2 chambers, which are known as auricles, are thin walled as compared to lower 2 chambers, which are known as ventricles. This I have told you earlier also when we were talking about the position of heart, कि हम कहते हैं हार्ट लेफ्ट में है, हार्ट लेफ्ट में बिल्कुल नहीं है। The point is I am drawing it, ये जो ऊपर की वॉल्स हैं ये पतली है as compared to this। ये जो वॉल्स है वेंट्रिकल की, मसल्स है वेंट्रिकल्स की, ये थोड़ी थिक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस, ये थोड़ी ज्यादा थिक है। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल है लोअर साइड में, ये थोड़ी सी थिक है, तो आप देखेंगे थिकनेस होने की वजह से थोड़ा सा कहाँ पे लेफ्ट लंग के अंदर इंगल्फ हो रही है। आपका जो लेफ्ट लंग है उसमें इंगल्फ हो रही है, इसलिए हम कह देते हैं हार्ट लेफ्ट में है। सो अगर हम बात करें मसल्स की, सो दीज टू अपर ऑरिकल्स आर थिन मसल एज कंपेयर टू दिस। रीजन, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा क्यों है कि वेंट्रिकल्स हैं, या फिर अगर स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी मसल थिक है, क्योंकि बेटा जितनी ज़्यादा मसल होगी उतना ही ब्लड एब्जॉर्बेंस होगा। ओके, तो यहाँ पे जब जो साफ खून आएगा लंग से, अभी मैं आपको बताऊंगी, जो लंग से साफ खून आएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरीज हैं पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगी टुवर्ड्स द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ये जो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल है सबसे थिक होती है, और अगर ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स में हम बात करें तो ऑरिकल्स आर थिन वॉल्ड एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। नाउ व्हाट हैपन्स, इसके बाद आपका आता है बेटा this pulmonary arteries and aorta. Aorta है एक बड़ी वेन है। ओके, aorta is a bigger vein जो आपका लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, और पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स जो कि क्या करती है बेटा, देखेंगे अगर हम वेन्स की बात करें, आर्टरीज की, पल्मोनरी आर्टरीज होंगी जो गंदा खून लेके आएंगी। आई टोल्ड यू आर्टरीज हमेशा बॉडी को साफ खून देती है, साफ यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
but the exception is pulmonary artery. Okay, so there will be two types of arteries from the lower side of the body. Suppose this is the in your middle, जो chest region में जो बेटा आपका heart है, तो जो lower arteries हैं, lower pulmonary arteries हैं, वो lower body से deoxygenated blood लेंगी, and upper pulmonary artery will bring the deoxygenated blood from your shoulder region, neck region, brain. वो जो deoxygenated blood आ रहा है वो आपकी upper pulmonary artery से आ रहा है. Now what happens exactly? देखेंगे lower pulmonary artery जो गंदा खून है, I told you this thing also, right side. Okay, I'm standing like this. Please mind the left and right. Okay. फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो हम क्लियर करेंगे, जितना आपको समझ में आ रहा है ग्रास्प करेंगे. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ये आपका हार्ट कुछ ऐसा है, 4 कमरे वाला एक ऑर्गन है. नाउ द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट ऑलवेज डील्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ व्हाट हैपेंस, pulmonary artery, lower pulmonary artery and upper pulmonary artery, they drains the blood in right atrium. Okay, you can call it auricular atrium. Okay, now from this right atrium देखेंगे, बिल्कुल easy concept है. आपने प्रेशर, हम हमेशा प्रेशर वगैरह की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर एंड ऑल, we will talk about that. What will happen, जब यहाँ पे बेटा क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ब्लड का, एंड यू नो अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर. प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यू माइट हैव स्टडीड दिस इन फिजिक्स. व्हाट विल हैपन, ये जो हाथ है, ये जो ब्लड है, ये रश करेगा, गंदा खून आएगा राइट ऑरिकल में, जहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा. वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट होगी. ओके, ये इस तरीके से जब पूरा ब्लड इसमें आ जाएगा तो यहाँ पे आपकी लगी हुई होती है वॉल. सो दिस राइट साइड इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल. बेटा ये नाम आपके बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो जितना एनसीईआरटी में उतना ही आप लिखेंगे. फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ, आप समझेंगे, ध्यान से देखेंगे. अच्छा, वन मोर थिंग, दीज ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय ऑरिको वेंट्रिकुलर सेप्टम. वेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब आपको पता है कि हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है. पाइसेस के पास कैसा है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है. जो फिशेस हैं, पाइसेस हैं, उनका हार्ट कैसा है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल. पाइसेस के बाद आपके आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स. ओके, सो एम्फीबियंस अगेन हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट. ओके, 2 ऑरिकल्स एंड 1 ventricle. Okay, then your reptiles also have 3 chambered heart. Exception is crocodile. क्रोकोडाइल ही ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास हमारे जैसा 4 चैम्बर्ड हार्ट है. उसके बाद आपके आती है एवीज, बर्ड्स और मैमल्स. तो मैमल्स, हम मैमल्स हैं, वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट. ओके, नाउ सो व्हाट हैपेंस, ये बेटा सेप्टम क्यों, ये जो, और ये देखेंगे, ये जो वॉल्स हैं, ओके, ये जो वॉल्स हैं, ये सेप्टा दीवार है. क्यों है बेटा, ताकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो. ओके, व्हाई वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, सब समझ रहे हैं. ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग अलग रूम है, तो ताकि एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हो, देयर शुड नॉट बी मिक्सिंग ऑफ ब्लड. कई बार हम कहते हैं ना बेटा ब्लू बेबी सिंड्रोम, कोई बच्चा होता है वो जन्म से हम कहते हैं कि उसका कलर एट द टाइम ऑफ बर्थ ही हैज़ अ ब्लूइश कलर. या आप मूवीज़ में देखते हैं, या जैसे शिव जी ने जहर पिया तो नीलकंठ कहा जाता है उनको. या आप देखते हैं कोई सफोकेट होता है, चोक हो जाते हैं, या जब हमारे कहीं ज़्यादा लग जाती है टिश्यूज़ में, वो जगह नीली पड़ जाती है, नील आ जाती है, यानी वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है कट गई. ब्लड सप्लाई कट गई तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो एरिया नीला हो जाता है. हम देखते हैं नील लग जाती है बॉडी पे. तो जो हम देखते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो कई बच्चों के जब ये वॉल्स में फॉल्ट होता है, जिसको आम भाषा में कहते हैं दिल में छेद है, ऐसे बोलते हैं. एक्चुअली क्या होता है, ये वॉल्स होते हैं लीक होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड मिक्स हो जाता है. सो नाउ द क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन क्या बनता है कंसेप्चुअल, कि ब्लड 4, आपका हार्ट 4 चैम्बर्ड है. सो व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द
रीजन बिहाइंड दिस, सो इट इंश्योर्स सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। क्योंकि अगर हम मैमल्स की बात करें, एवीज की बात करें, तो हमारा बॉडी डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड एट एवरी नैनो सेकेंड वी नीड कॉन्स्टेंट एनर्जी। ये मैंने आपको बताया था, हर वक्त हमें एनर्जी की ज़रूरत है, इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। कोई बीमार होता है उसको हम कहते हैं ना रेस्ट करो, जब रेस्ट करते हैं तो बॉडी के सेल्स रिपेयर होते हैं, तो उस हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। आपका सेल डिवीजन होता है या आपके नए सेल्स बनते हैं, दे ऑल्सो नीड एनर्जी, सो दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय these mechanisms. So every point of time, every fraction of second, we need constant energy. So we have to make sure that we have efficient circulatory system. So again I'm coming back on the functioning of the heart. What happens? Blood flows into right auricle and when this constricts, okay, जब ये constrict होगा तो blood सारा आ जाएगा बेटा right ventricle में, okay, and from right ventricle it will go to left auricle. left auricle से blood आपका जाएगा lungs में, जहाँ से, okay, from right ventricle the blood will go to lungs. I'm sorry I have drawn it here. From right ventricle, यहाँ पे देखेंगे बेटा, अभी एक बार देख ले, ज़्यादा अगर नाम नहीं समझ में आए तो ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आपकी होती हैं सेमी ल्यूनर वॉल्स। ये सेमी ल्यूनर वॉल्स क्या करती हैं? खून को ले जाती हैं लंग्स से, लंग्स में साफ खून देते हैं लेफ्ट ऑरिकल को, लेफ्ट ऑरिकल पूरा ब्लड पोर कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, जहाँ से ये क्या करती हैं आर्टरीज, जो एओर्टा है विच इज़ द बिगेस्ट आर्टरी, ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट वॉल्स, again I'm drawing it. ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा, ओके। एट द राइट साइड वी हैव ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल मतलब कस्प, आप देखते हैं कप, हाफ सेमी सर्कल जैसे फ्लैप होता है बॉटल पे, पानी पीने की बॉटल पे फ्लैप लगा हुआ होता है। इस प्रकार के 3, अगर आप हार्ट को देखेंगे एनाटॉमी तो आपको 3 इस प्रकार के कप दिखेंगे। आई जस्ट मेक इट हियर 1, 2 एंड 3, ओके। इस टाइप के आपको 3 कप्स दिखेंगे। दिस इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल एंड हियर इट इज नोन एज बाइकस्पिड वॉल। जो लेफ्ट साइड में वॉल है उसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल या फिर मिट्रल वॉल, ओके। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वॉल? ये आपका क्वेश्चन आता है वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि ये वॉल क्या करते हैं। ये वॉल बेटा बैक फ्लो बचाते हैं। इसको ऐसे सोचे ढक्कन की तरह, आप किसी चीज़ के ऊपर कवर कैप लगाते हैं, सो दीज वॉल्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड यहाँ मैंने क्या कहा था कि अगर किसी के, मैंने बताया था ब्लू बेबी सिंड्रोम, दिल वॉल में छेद है, लीक है, तो ब्लड मिक्स हो जाएगा। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज वॉल्स? दीज वॉल्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, हैंस दे प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। तो ये आपका वर्किंग एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट है। नाउ द नेक्स्ट वी हैव oxygen enters the blood in the lungs. The separation of right side and left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. ये मैंने आपको बताया कि आपका हार्ट राइट और लेफ्ट में बटा हुआ है। राइट साइड में गंदा खून, लेफ्ट साइड में आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि ब्लड मिक्स नहीं हो। Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. ये क्यों किया हमने, मतलब ये सेपरेशन है एनाटॉमी में, ऐसा क्यों है? ताकि बॉडी को बिना किसी हर्डल्स के कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे, ओके। ऑक्सीजन आपको पता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। नाउ दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स which constantly use energy to maintain their body temperature, okay। तो अब ये क्यों हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत है? क्योंकि हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है बहुत कॉम्प्लेक्स है। इफ़ यू टॉक अबाउट एवीज मतलब बर्ड्स और मैमल्स, ये पाइसिस का हार्ट है, ये आपका रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया,
रेप्टाइल से पहले एम्फीबी आता है, रेप्टाइल में आपका एक्सेप्शन हो जाएगा क्रोकोडाइल. ओके, तो ये इसका हार्ट है आपका रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस का. एंड दिस इज द हार्ट, दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्ट फॉर एवीज एंड मैमल्स. ओके, तो एवीज और मैमल्स का बहुत ही सिस्टमैटिक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बिकॉज दे हैव हायर एनर्जी नीड्स. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on temperature of the environment. Such animals like amphibians or many reptiles have three-chambered heart and tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood streams. Okay, तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास four-chambered heart है, but these animals which does not have four-chambered heart, यहाँ पे क्या होती है, थोड़ी सी blood की mixing होती है.